Now we will begin with Max Weber. See, prior to Max Weber, positivist dominated the scene, okay, either in form of functionalist or Marxist Marxist or confrontalist school of thought. Okay, Max Weber gave the new scope and dimension in the form of non-positivist. He was a non-positivist. His school of thought is known as interpretivist. Interpretivist. Okay. Prior to him, whoever has spoken about at a very grand level. Okay. Such as society as a whole. Okay. Max Weber was able to put individual at the center stage of sociology. Okay. In fact, with his anti-positivist approach, he brought a very significant change, and that formed a bridge between the ideation theory and the positivist theory. I'll explain it. See, पॉजिटिविस्ट स्कूल क्या बोल रहा था? पॉजिटिविस्ट स्कूल क्या कह रहा था? सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट. ठीक है, तो उन्होंने साइंटिफिक मेथडोलॉजी को स्वीकार किया मैक्स वेबर ने. ही सेड दैट सी सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड सोशियोलॉजीज आर डिफरेंट. ओके, सो if you say that sociology is something which is going to be on the lines of natural science, this will be nothing but pure foolishness. Okay, but it has to be studied very scientifically. Okay, so yes, sociology may not be a natural science, but it has to be studied very scientifically, and for that we will take scientific methodology. Okay, ideation क्या बोलते थे? Ideas are important. Okay, ideation. नियो कांटियंस जो थे वो क्या बोलते थे? Ideas are important. ठीक है, and ideas form the part of any change, right? In fact, नियो कांटियंस और कांट के अनुसार क्या था कि डेमोक्रेसी इज द पिनाकल ऑफ आइडिएशन, राइट? आइडियाज इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं. तो आइडियाज के लिए कौन जिम्मेवार है? इंडिविजुअल. ठीक है, और इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग एनी एक्ट, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल मस्ट बी असाइनिंग सम अमाउंट ऑफ मीनिंग टू इट. एक्ट. So these acts are performed only when an individual has assigned some meaning. ठीक है, that meaning has to be interpreted by the observer. जो social scientists हैं, they need to interpret it. ठीक है. So with these two things bringing together, Max Weber in fact acted as bridging the gap between the positivist and ideations. Okay, he was able to bridge this gap of positivist and ideation. Okay, Max Weber himself is a non-positivist. When we say non-positivist, that means Max Weber says that sociology can't be treated as a natural science. You have to treat sociology as a social science, but you will have to study it in a very scientific manner. So for this, he introduced cost-effect relationship.
कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, टू बी स्टडीड इन एनी सोशल event or action. He also introduced a concept of social action. Okay, he studied it as a subject matter of sociology. Subject matter of sociology. आप वेबर से कंपेयर करो तो वेबर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, सोशल फैक्ट्स, ओके। और सोशल फैक्ट में जब वो इंट्रोड्यूस किए थे तो उन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा था। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर बिगर देन इंडिविजुअल, बृहद तौर पे है, ग्रैंड लेवल पे है। जो सोशल एक्शन है ना, ये इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, इंडिविजुअल। सो दिस इज एट विच लेवल? लेवल ऑफ इंडिविजुअल, नॉट सोशल और ग्रैंड, ठीक है। सो इट इज नॉट एट द लेवल ऑफ, इट इज नॉट एट ग्रैंड लेवल। सो ग्रैंड लेवल को क्या बोलते हैं? ग्रैंड को क्या बोलते हैं? ग्रैंड लेवल को क्या बोलेंगे? माइक्रो थ्योरी, मैक्रो थ्योरी, MACRO। तो ये नहीं, इसके ऊपर काम नहीं किया उन्होंने। किया कि भाई देखो, सोशियोलॉजी को समझना है तो सब्जेक्ट सोशल एक्शन को समझना होगा, मैक्स वेबर ने कहा। और सोशल एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा। तो इंडिविजुअल व्हेन परफॉर्मिंग एनी एक्शन मस्ट बी इंटरप्रेटिंग इट, राइट, मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट। तो वो जो इंटरप्रेट कर रहा है अपने कंडीशंस को, अपने आजू बाजू के थिंग्स को, ही इज एक्टिंग एंड रिएक्टिंग व्हेन ही इज इंगेजिंग विद देम, राइट। सो हमें उसकी पढ़ाई करनी होगी। तो माइक्रो लेवल पे लाया उन्होंने सोशियोलॉजी को। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनका, ठीक है। दूसरी बात, मैक्स वेबर ने कंप्लीटली किसी चीज को रिजेक्ट नहीं किया है। आप अगर पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट को देखिए तो ही हैज टेकन साइंटिफिक मेथडोलॉजी आउट ऑफ इट एंड ही हैज ट्राइड टू कोलैबोरेट इट विद कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडीज। मैक्स वेबर ने अभी तक जो भी बोला है ना, वो सारे सच प्रूव हुए हैं। सोशियोलॉजी में ही इज स्टैंडिंग टॉलेस्ट ऑफ ऑल थिंकर्स। इन्होंने सब चीज इनको हर जहां अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि मध्यम मार्ग जैसे बुद्ध का है ना, उसी तरह इन्होंने बीच का मार्ग लिया है, सबको समाहित करके चलें। दैट मीन्स ही हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू ईच एजेस विच आर इन कांस्टेंट इंटरैक्शन और हैपनिंग इन सोसाइटी। सारे चीजों को साथ में लेके गए हैं, पर इन्होंने इंडिविजुअल को सेंटर स्टेज दिया है, ठीक है। तो जब ये इंडिविजुअल को सेंटर स्टेज देते हैं तो इंडिविजुअल क्या परफॉर्म कर रहा है? एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, ठीक है, एंड दिस एक्शन विल बी कॉल्ड सोशल एक्शन only when it fulfills two of the major criteria. To become social action, number one, a meaning has to be attached to any act when an individual is performing. Meaningful act or meaning attached. Meaningful act or meaning has been attached to an action while being performed. Attached to an action while being performed. While being performed. ठीक है। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूं कि इंडिविजुअल कोई भी काम करे, अगर उसमें मीनिंग है, ठीक है, तभी वो सोशल एक्शन हो सकता है। नंबर वन क्राइटेरिया, फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिंग इज नॉट ए सोशल एक्शन, क्योंकि हम ब्लिंक कर रहे हैं, हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं, इट इज ए रिफ्लेक्सिव एक्शन हो जाता है, ठीक है।
पर विंकिंग मतलब हम किसी को आंख मार रहे हैं, तो हम कुछ इशारा कर रहे हैं, वी आर अटैचिंग सम मीनिंग टू इट, ठीक है। सो विंकिंग इज ए सोशल एक्शन, ब्लिंकिंग इज नॉट। मीनिंग इज ए सोशल एक्शन, ब्लिंकिंग इज नॉट। आपको समझाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ब्लिंकिंग इज नॉट ए सोशल एक्शन बिकॉज देर इज नो मीनिंग अटैच टू ब्लिंकिंग। जो पलक छपकाना हुआ, अचानक से हम बात कर रहे हैं आपके साथ, हमारे पलक ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो देर इज नो मीनिंग अटैच टू इट। ब्लिंकिंग हैज गॉट मीनिंग। ये पहला क्राइटेरिया है, ठीक है, फॉर एन एक्शन टू बिकम सोशल एक्शन। नंबर सेकेंड क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट है, और until these both those criterias are fulfilled, no action performed by an individual will be taken as a social action. So what is the second criteria? It must be oriented towards other. For example, as per Max Weber, okay, Max Weber says if someone is performing any action, it must be oriented towards someone else. If it is not oriented towards someone else, this is not a social action. For example, अगर हम बारिश हो रही है, ठीक है, और छतरी निकाल करके खोले, तो वो सोशल एक्शन नहीं है। हम कोई भी वो काम करें, पहला तो उसमें मीनिंग अटैच्ड होना चाहिए, दूसरा it must be oriented towards other, मतलब we have taken into consideration someone else. For example, I have picked up my phone and I am just sending someone a message, okay, तो वो मैसेज उस आदमी तक पहुंच रहा है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मीनिंगफुल मैसेज लिख रहे हैं, XYZ नहीं लिख रहे हैं। सेकेंडली, आई हैव टेकन दैट पर्सन इनटू अकाउंट टू सेंड द मैसेज। अब मान लो नेटवर्क फेलियर हो गया और वो मैसेज पहुंचा ही नहीं, फिर भी वो सोशल एक्शन है, ठीक है। दूसरा है कि हम जो मास्क पहन रहे हैं, ये क्या है, क्यों पहन रहे हैं? अगर यहाँ पे कोई अगल बगल में नहीं है हमारे, तो हम मास्क नहीं पहन रहे हैं। इफ देयर इज समवन हु क्रॉसेस 6 feet डिस्टेंस बिटवीन मी एंड देम, आई विल डेफिनेटली wear the mask. So my wearing of mask is also a social action because it is oriented towards someone else, ठीक है। इसके साथ ही with this he has excluded 2 types of action. Number 1, imitative action. ठीक है, और नंबर 2, मास कंडीशनड एक्शन। ठीक है, देखो इमिटेटिव एक्शन मतलब वी आर डूइंग समथिंग बाय इमिटेटिंग समवन एल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी चिड़ियाघर गए, जू में गए और आपने कुछ किया, आपका देखा देखी चिंपांजी भी कुछ किया। चिंपांजी हैज नॉट एसोसिएटेड एनी मीनिंग टू इट एंड इट इज नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स, इट मे बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स बिकॉज ही इज जस्ट फॉलोइंग यू, राइट, ठीक है। सो इट इज जस्ट इमिटेटिंग, बिना कुछ सोचे समझे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इमिटेटिव एक्शन इज नॉट ए सोशल एक्शन बिकॉज पहला चीज है वी हैव नॉट अटैच्ड ए मीनिंग टू इट, वी आर जस्ट डूइंग इट। सेकेंड, ये ओरिएंटेड टुवर्ड्स समवन एल्स है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, पहला ही कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है, मीनिंग अटैच्ड है ही नहीं इसके साथ, जस्ट इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है मास कंडीशनड एक्शन। बारिश हो रही है, सब कोई बाहर मार्केट में गए, सबने जिसके पास छाता है सबने अपना अपना छाता खोल दिया, राइट, तो मास कंडीशनड एक्शन, राइट। या भीड़ में, अच्छा वो ये एग्जाम्पल से बेहतर है, जब हम भीड़ में कहीं जा रहे हैं, एक पूरी हुजूम जा रही है, राइट, और फिर नो, इससे बेहतर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वो सारे एक्शन जिसमें ना मीनिंग अटैच्ड है, नॉट नाइदर उसका कोई टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ समवन एल्स व्हाइल परफॉर्मिंग दैट एक्शन,
ये दोनों में विद्यमान है, ठीक है। समवन इज जस्ट इमिटेटिंग एंड समवन इज जस्ट फॉलोइंग बिकॉज एवरीवन एल्स इज फॉलोइंग इट। कभी कभी क्या होता है, सारी भीड़ जा रही होती है और कुछ एक्टिविटी हो जाती है और भीड़ रुक जाती है। एक बार भीड़ जमा है तो बाकी सारे लोग भी देखने लगते हैं कि हो क्या रहा है, राइट। कौतूहल बस, क्योंकि सारी भीड़ जमा है, भले ही कुछ ना हो रहा है, तो वो सारे एक्शन भी जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग इट because someone else, the entire mass around is doing it and you are feeling odd one out over there and you are performing it, that is mass conditioned action, okay. And since there is no meaning attached to it, you are just following everyone else and you have not doing that action by taking someone else into account and an individual के अकाउंट में लिया ही नहीं जिसके प्रति आप वो कोई एक्शन परफॉर्म करें, तो दैट इज मास कंडीशन एक्शन. With these two exclusion, the rest, anything which fulfills these two criteria, okay, is social action, and he has provided social action as a matter of study also. It is a study matter in sociology. So जब study matter इन्होंने in sociology define कर दिया है social action को, so he must have given methodology to study the social action. ठीक है, तो जो methodology इन्होंने दी है, मैं बार बार आपको बोलूंगा कि अदर देन सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ इग्नू यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग, और न्यूज़पेपर्स को पढ़ें रेगुलरली. आपको कोई नोट्स नहीं चाहिए. आप बेमतलब का बहुत सारा नोट्स का जुगाड़ करेंगे, अपने घर में रखेंगे, क्योंकि एवरीवन एल्स इज डूइंग इट. ठीक है, हर कोई जाके जेरोक्स के दुकान से या नोट्स के दुकान से इतने बड़े बड़े बंडल ले रहा है, तो आप भी कर रहे हैं बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट, राइट. सो डोंट डू दैट. डाउनलोड नोट्स फ्रॉम इग्नू, ओके. ज्ञान दर्शन या इग्नू के साइट से मिल जाएगा आपको. उसको मैच कराइए अपने सिलेबस से सोशियोलॉजी के. सिर्फ उसी को पढ़ना है, और जो मैं बता रहा हूं इट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, दैट्स इट. दूसरा, न्यूज़पेपर को लाइएगा, क्योंकि अगर आप जनरल जो करंट के चीजें हैं उनको अगर डालिएगा एज एन एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडी वाइल राइटिंग योर मेन्स पेपर for optional, which is sociology, and it will be quite relevant, and you will able to score really good marks in those subjects, okay. Not just sociology but other subject also, जहाँ पे आप है ना अपने क्या कहते हैं करंट्स को करंट के साथ साथ जो कंटेम्पररी है उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट मैटर आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसको जब मिला करके आप आंसर लिखोगे, इन दैट केस यू विल बी एबल टू गिव वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स. और आपके स्टेट पीसीएस में शायद 300 मार्क्स के होते हैं, तो आई विल ऑलवेज से स्कोरिंग 180 प्लस इन ए सोशल साइंस सब्जेक्ट इज ए वेरी गुड स्कोर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द मार्किंग हैपनिंग दैट टाइम. But you should always aim for 220 in your state PCS, because in state PCS examination the questions will be direct. आपको थिंकर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्टली लिखिए, ठीक है. और कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको देंगे ही नहीं. दूसरी बात है कि जो आपके कंटेम्पररी जो स्टूडेंट्स हैं, इवन दे विल नॉट बी, जो आपके साथ मेंस लिखेंगे ना, तो आपका ये कंपटीशन, राइट. एक जो एग्जाम इवेल्युएशन होता है आपका पेपर का, जो इवेल्युएटर्स होते हैं वो 20-20 क्वेश्चन पेपर एक बार में देखते हैं, राइट. तो अगर आपका बेहतर है, राइट, यू हैव मेंटेन द क्वालिटी, तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है. और ये कैसे आएगा? यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग एंड राइटिंग. अगर दिमाग में होगा तो हाथ चलेगा. सेकेंड, कंटेम्पररी जो चीज है उसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. इफ यू आर एबल टू रिलेट दो स्टफ विद द कंटेम्पररी स्टफ, whatever theory you have understood, believe me, your answer sheet will reflect your in-depth understanding of the subject, and that is where you will get around 220 plus. Okay, in fact I will say 200 is a good score, is a definitely good score, but you should aim for 220, which is possible, ठीक है. देखो, बहुत लोग होंगे जिनका मैथ्स में 280 आ जाए, ठीक है. यहीं पर आपके साथ अगर 100 मार्क्स का डिफरेंस हो गया तो डेफिनेटली यू विल लैग बिहाइंड इन योर, ठीक है. सिलेक्शन तो हो जाएगा पर आपको शायद एसडीएम का पोजीशन ना मिले, तो फिर आप अगेन साइकिल में जाओगे,
for writing exam. So it is always better that you should go ahead and score 220. बाकी ये 60 तो आप आगे पीछे मैनेज कर लोगे GS 2 पेपर में और GS 1 पेपर में. वो भी मैं बता दूंगा, या मेरी एक वीडियो है आई थिंक, या मेंस का मैं एक वीडियो बना दूंगा 15 मिनट ईच, हाउ टू स्कोर इन बोथ द पेपर. And this can be done by regular writing. You should keep on writing. Second, state PCS prelims examination difficult नहीं होते, उनका एक set pattern होता है और उस pattern में वो all of a sudden abrupt change नहीं लाते हैं. तो please keep working hard, and this time your prelims examination after the paper has been cancelled. मुझे लगता है कि BPSC अपने साख को बचाने के लिए बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को खत्म करेगा. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू जैसा मुझे लगता है 63वें या 62वें में हुआ था. दे हैव डन इट इन ए वेरी गुड. 63वें वाले में बहुत जल्दी कराया था उन्होंने सारा चीज, 7 to 8 months. सो मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी 7-8 महीने में अगर हो गया तो आप क्लास 1 ऑफिसर बहुत जल्दी हो जाओगे विद इन ए ईयर. ठीक है. सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कभी कभी ये बताना होता है जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस. तो इन्होंने मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी दी. तो फर्स्ट में है फर्स्ट हैंड. फर्स्ट हैंड VERSTN. वी को जर्मन में F प्रोनाउंसिएशन होता है. फॉर एग्जाम्पल फोक्स वैगन, जो आप गाड़ी देखते हैं वो वोक्स वैगन नहीं है. ठीक है, वो फोक्स वैगन है बिकॉज वी का प्रोनाउंसिएशन F है जर्मन में. तो फर्स्ट हैंड. सेकेंड है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस. इफेक्ट एनालिसिस. थर्ड है आपका आइडियल टाइप. ये एक टूल दिया है उन्होंने, आइडियल टाइप. ठीक है. दीज आर 3 टूल कंबाइनिंग टुगेदर हाउ द एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल हैज टू बी इंटरप्रेटेड. देखो ये 3 टूल हैं जो इंडिविजुअल के जो एक्शन है ना उसको इंटरप्रेट करेंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज सो मच ऑफ सब्जेक्टिविटी व्हेन एन इंडिविजुअल परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ एन एक्शन. राइट. सब्जेक्टिविटी क्या है? इंडिविजुअल कुछ परफॉर्म कर रहा है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है. राइट. इसको इंटरप्रेट करने की जिम्मेवारी किसकी है? सोशोलॉजिस्ट की है, सोशल थिंकर्स की है, साइंटिफिक सोशल साइंटिस्ट की है. राइट. तो कोई भी ऐसे इवेंट को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक टूल होना चाहिए, क्योंकि यू नो मैक्स वेबर टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी इन सोशियोलॉजी. So he has given 3 tools. Number 1 is first hand, number 2 is cause and effect analysis, number 3 is ideal type. First hand में उन्होंने पहली बात क्या बताई है कि the researcher must develop a tool to communicate with the active performer. जो एक्टर है जिसने परफॉर्म किया है उस एक्शन को, तो there must be a tool to communicate. दूसरा है he should get data from the secondary sources. In fact ये वाला पहला होगा, डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज. ठीक है. जो लोग ऑब्जर्वर रहे होंगे उनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा. ठीक है. उस इवेंट के जो भी ऑब्जर्वर रहे हैं, पैसिव ऑब्जर्वर, विदाउट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट वेरी एक्ट, दोज हु आर पैसिव ऑब्जर्वर, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा. इस डेटा को बोलेंगे सेकेंडरी डेटा. नंबर 2 क्या होगा कि टूल डेवलप होगा टू कम्युनिकेट विद द एक्टर बाय द रिसर्चर. नंबर 3 क्या होगा? कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी. व्हाट इज कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी? कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी मतलब है रिसर्चर शुड कीप इन दिस माइंड दैट ही शुड दिस इन माइंड दैट ही शुड नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स द एक्टर. अपने इमोशंस को दरकिनार करके ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिव सर्कमस्टांसेस को पढ़ा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू गो टू ए कल्चर विच इज टोटली डिफरेंट देन योर्स, यू ट्राई टू कंपेयर इट विथ योर ओन कल्चर, एंड दैट इज ए फुलिशनेस, बिकॉज यू शुड read that or study that very culture in a very objective manner without comparing it with your own culture. ठीक है. अगर आप कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बायसनेस
झलक जाएगा, बिकॉज आपका पर्पस ही होगा कि आप अपने कल्चर से सबकॉन्शियसली कंपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करोगे, राइट। तो उसमें क्या होगा, आप दूसरे के कल्चर को इन्फीरियर करोगे, राइट। तो उसके लिए आपको कल्चरल रिलेटिविज्म एक टर्म है कि आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, बिना किसी को कंपेयर किए, सिर्फ उसको इन टोटलिटी इन इट्स यूनिकनेस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी रिसर्चर को एक्टर के साथ किसी भी तरह का इमोशनल बॉन्डिंग नहीं रखना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, सिर्फ उस चीज को पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ होता है कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, ठीक है, डेटा फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कौन है, एक्टर, राइट, ये सारा कर लिया। सेकेंड है कॉज इफेक्ट एनालिसिस, you have to draw that what is the reason why this has happened and what is the effect and try to draw a correlation. नंबर थर्ड है आपका आइडियल टाइप। आइडियल टाइप 4 तरीके के होते हैं जिसको हम डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। और ये आइडियल टाइप एक टूल दिया गया था कि चीजों को समझना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में 200 बच्चे हैं, ठीक है। हर बच्चे के अनुसार क्या होगा कि अगर मैं उन्हें बोलूं व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड आईएएस ऑफिसर, तो अगर मैं सबको बोलूं आप 4 क्राइटेरिया सोचें, ठीक है, होने का 20 भी हो सकता है। तो 4 क्राइटेरिया में कुछ लोग बोलेंगे ऑनेस्टी, कुछ लोग बोलेंगे इंटीग्रिटी, कुछ लोग बोलेंगे शुड बी एबल टू टेक बोल्ड डिसीजन, करेजियस, शुड हैव रैशनैलिटी, एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, साइंटिफिक अप्रोच, ए ग्रेट लर्नर, ए गुड फॉलोवर, लीडरशिप स्किल, ठीक है। तो बहुत सारे क्वालिटी मैंने अभी लिस्ट डाउन किए, राइट। तो हर किसी को मैंने 3 क्वालिटी बोली है, तो कुछ ना कुछ जो बेसिक होंगे 3 वो काफी महत्वपूर्ण होंगे, राइट, सबके लिए। उनके किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फिशनेस एक बहुत बड़ा क्वालिटी होगा, बोल्डनेस बहुत बड़ा क्वालिटी होगा, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशनल क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। तो जितने लोग होंगे उनके हिसाब से उतने तरह के गुड एट्रीब्यूट्स, मिनिमम 3 जो मैंने बोला है वो देंगे, जो उनके हिसाब से बेस्ट ऑफ 3 होंगे, राइट। तो हर इंडिविजुअल रिसर्चर जो सत्य को देखने की कोशिश करेगा या सोशल इवेंट को समझने की कोशिश करेगा, वो एक अपना आइडियल टाइप डेवलप करेगा। बहुत सारे आइडियल टाइप जब मिलेंगे ना, बहुत सारे आइडियल टाइप जब मिलेंगे हर रिसर्चर के, तो वो मिल करके एक होलिस्टिक रूप में उस इवेंट को इंटरप्रेट कर पाएंगे, ठीक है। मैंने सबको बोला है 3 पॉइंट्स लिखने जो काफी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इन ए सिविल सर्वेंट, पर वो जो 3 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। हर किसी के 3 को मिला करके जब देखा जाएगा तो हमें पता चलेगा होलिस्टिक ट्रूथ क्या है, कि हर किसी के 3 को मिला करके पता चलता है 8 या 10 एक ऐसा क्वालिटी है जो होना ही चाहिए, राइट। तो वो एक सेट ऑफ क्वालिटी होगा जो हमें एक ऑलमोस्ट परफेक्शन की तरफ ले जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा, ऑलमोस्ट परफेक्शन, ठीक है। इन ए सिमिलर मैनर जो आइडियल टाइप होगा वो बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। रिसर्चर अपना आइडियल टाइप जब डेवलप करेगा तो उसका खुद का भी बायसनेस होगा, तो बहुत सारे रिसर्चर के आइडियल टाइप होंगे, सेम इवेंट को स्टडी किया जाएगा और स्टडी करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पहुंचा जा सकता है जब हम बहुत सारे लोगों के रिसर्च को पढ़ें, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि एक रिसर्चर को अपना आइडियल टाइप जनरेट करना होगा, डेवलप करना होगा और उसको डिफाइन कर देना होगा कि मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट था और इन्हीं के आधार पे मैंने रिसर्च को पढ़ा है। क्योंकि रिसर्च को फॉलो करने के लिए एक बहुत वृहद सेट रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा, सारे डायमेंशंस कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो रिसर्चर शुड हिमसेल्फ डिफाइन कि ये जो चीज एट्रीब्यूट्स हैं इनको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के मैंने इस इवेंट को पढ़ा है। आइडियल टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप्स, जो है रैशनल, वर्ट रैशनल, ठीक है। रैशनल जो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग इवेंट में इंडिविजुअल गवर्न होते हैं अलग अलग चीजों से, कुछ ट्रेडिशन से होते हैं, कुछ वैल्यूज से होते हैं, कुछ रैशनैलिटी से होते हैं। जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम परफॉर्मिंग एक्शन बिकॉज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू or my action is because oriented to achieve a goal, it is rational action, right? Or if a mom is slapping the child, it is because of strong emotions, right? It has not followed rationality, right? तो इन सारे चीज को ध्यान में रखे आइडियल टाइप को डेवलप किया गया है, हम उसे भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। विद दिस आई हैव इंट्रोड्यूस
Max Weber to you. We'll continue with Max Weber in next class.